Standard 7 History. Lesson number 1 Sources of History. So, my dear students, today we are going to start the first lesson of history. Sources of History. We studied ancient Indian history last year. This year we are going to study the medieval period of Indian history. Broadly, the period from the 9th century CE till the end of 18th century CE is considered to be the medieval period of Indian history. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. So, my students, last year हमने एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया. व्हाट डू यू मीन बाय एंशंट इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री विच इज वेरी ओल्ड इंडियन हिस्ट्री के बारे में. नाउ इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. हिस्ट्री इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. Very old, that is ancient, and the middle period, that is medieval, and the new era, that is modern history. So ये साल में हम पढ़ने जा रहे हैं medieval period of Indian history. From 9th century CE. What do you mean by CE? Common era. What do you mean by common era? Previously it was called as AD, Anno Domini. The whole full time period of the years is divided into two main parts. One is BC and the other is AD. BC means before Jesus Christ, before Christ. AD means Anno Domini, that means the time after Jesus. So now that AD is changed to CE, Common Era. Common Era means the time after Jesus Christ. तो पूरे टाइम को जीसस क्राइस्ट के पीरियड से डिवाइड किया हुआ है. जीसस क्राइस्ट के जो जीसस क्राइस्ट इस धरती में आने से पहले का टाइम को बीसी कहते हैं और उसके बाद का टाइम को एडी अदरवाइज सीई कहते हैं. तो 9th सेंचुरी सीई से लेकर 18th सेंचुरी सीई तक मेडिवल पीरियड माना जाता है. मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ओके, नाउ in this lesson we are going to study the sources of medieval history. हिस्ट्री अचानक इधर से आया हुआ नहीं है. हिस्ट्री पहले जो बीता हुआ कल, तभी के इंसिडेंट्स, तभी के लोगों के बारे में, तभी के इन्वेंशंस के बारे में, तभी के टेक्नोलॉजीज के बारे में और तभी के लाइफस्टाइल ऑफ पीपल के बारे में सब कुछ हमें कैसा पता चलता है. देयर शुड बी सम सोर्सेस टू सपोर्ट ऑल दीज इवेंट्स. ये सभी इवेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई सोर्सेस होना चाहिए. There should be some sources to supply all the information regarding this period. ये पीरियड के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ सोर्सेस होना चाहिए. So first of all we are going to study about those sources of medieval history. History gives us chronological, scientific and systematic account of past events. हिस्ट्री हमें क्या देता है? chronological means line wise. which incident took place first and which incident just after that. उसके बाद क्या हुआ, ये order में line wise according to the time if anything is arranged, that is called chronological. Scientific means based on science, and systematic, scientifically proved and systematic means एकदम correct तरीके से, सिस्टम के हिसाब से हमें पूरे पास्ट इवेंट्स के बारे में हिस्ट्री पूरे नॉलेज देते हैं. 4 factors are very important from the viewpoint of history. They are individuals, society, place and time. हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करोगे तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री या व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, देयर आर 4 मेन फैक्टर्स. हिस्ट्री डिपेंड होता है 4 मेन चीज़ों पे. वन इज society, samaj, where we live in, the people around us, including us, is a society. ऐसे बहुत सारे सोसाइटी मिलकर एक एरिया या एक विलेज, एक सिटी, फिर एक कंट्री, फिर द होल वर्ल्ड, ऐसा बनते हैं. तो सोसाइटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ हिस्ट्री. द अदर वन इज प्लेस, देन नेक्स्ट इज टाइम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति, each person.
History must be based on authentic evidence or proofs. हिस्ट्री, अगर किसी ने हिस्टोरिकल कोई राइटिंग्स लिखे या कोई हिस्ट्री का राइटिंग्स है या हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड है, तो इट मस्ट बी authentic. Yeah, it must be based on authentic evidence or proofs. What do you mean by authentic? Authentic means genuine, जिस पर पूरे भरोसे कर सकते हैं, पूरे के पूरे तरीके से एकदम ट्रू एविडेंस होना चाहिए, ट्रू प्रूफ होना चाहिए. These proofs are known as sources of history. ये proofs को ही कहते हैं sources of history. Let us classify these sources into material sources, written sources, and oral sources to learn more about them. Let us also evaluate the sources of history. तो बहुत सारे सोर्सेस है जिसके ज़रिए हमें हिस्ट्री का अलग अलग पहलू हमारे सामने खुलते हैं. इस पूरे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को 3 मेन डिवीजन में डिवाइड किए हुए हैं. क्यों ऐसे डिवाइड किए? कुछ सोर्स हमें चीज़ों के ज़रिए मिले, पुराने ज़माने के कुछ चीज़ें हैं, उसके टुकड़े हैं, उसके कोई रिमेन्स उसके ज़रिए मिले. और कुछ सोर्स ऐसे हैं कि लिखे रखे हुए थे, कहीं पत्थरों में खोद कर लिखे रखे हुए थे, इंस्क्रिप्शंस उसको कहते हैं, और या फिर कोई केव्स में ड्रॉ करके वगैरह रखे थे. तो ये पूरे लिखे हुए फॉर्म में मिला, इसलिए वो रिटर्न सोर्स हुआ. और तीसरा वाला था ओरल सोर्सेस, यानी लोग अपने मुंह से बोले 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 आगे एक जनरेशन के लोग पूरे एक दूसरे से गाते हैं या अलग अलग तरीके से अपने मुंह से इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर ट्रांसफर करते रहे. तो ये कहीं लिख कर रखा हुआ नहीं है, ना कोई चीज़ इसका बने हुए हैं. Only orally it is transformed from one generation to another. That's why these kind of sources are called oral sources of history. We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. It is necessary to support our study with the historical sources. These sources have to be verified. अभी बच्चों, लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है. किसी का इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में, तो किसी का इंटरेस्ट दूसरे कोई काम में है. तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री का पूरे खोज निकाल कर अपने तरीके से कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट क्रिएट करने का, बनाने का बहुत शौक रहता है. तो अगर सपोज आप में से किसी को है या हम में से किसी को ये इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कोई भी स्टडीज है, इट शुड बी सपोर्टेड विद द हिस्टोरिकल सोर्सेस. हमारा स्टडी का जो रिजल्ट है, अलग अलग सोर्स उसको सपोर्ट करना चाहिए. और हमें जो कुछ भी हमने फाइंड आउट किया है, हिस्ट्री हमने क्रिएट किया है, इट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम विद द सोर्सेस के साथ, हिस्टोरिकल सोर्सेस के साथ उसको वेरीफाई करना चाहिए कि कितने हद तक हमारा रिसर्च सही है. वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक. अगर कोई ऐसा नया हिस्टोरिकल अकाउंट आया तो हमें चेक करना होगा कि कितने हद तक वो ऑथेंटिक है. आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक. It is necessary to use those sources judicially and only after a critical analysis. ये सोर्सेस को हमें यूज़ करना है, यानी जो जो सोर्स हमें हिस्ट्री में से मिल रहा है, हिस्ट्री का सोर्सेस है, वो सोर्सेस को एकदम जुडिशली यूज़ करना है, उसको बहुत ही सोच समझकर जस्टिफिकली, यानी उसके मिसयूज़ किए बिना उस सोर्सेस को यूज़ करके हमारे जो हिस्टोरिकल अकाउंट है उसको सपोर्ट करना है. और उसका क्रिटिकल एनालिसिस होगा, यानी उसके अंदर बारीकी से चेक कर कर, एनालिसिस मीन्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा, बारीकी से चेक करेंगे और उसमें कुछ भी अगर मिस्टेक है तो क्रिटिक करेंगे, यानी कि उसमें क्रिटिकली यानी डीपली जाकर उसके अंदर का क्या मिस्टेक है, क्या राइट है, वो पूरे चेक करेंगे. देन ओनली दैट हिस्ट्री इज एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड. Forts have an important place among material sources. So now we are going to study something about material sources. उसमें सबसे main place किसका है? Fort. You must have heard of different forts. सिंधुदुर्गा, प्रतापगढ़, है ना, बहुत सारे सोर्सेस सुने, सॉरी फोर्ट्स सुने हैं. और महाराष्ट्र में रहते हुए फोर्ट के बारे में नई जानकारी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. हमारा शिवाजी महाराज ने ही इतने सारे फोर्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्ट्स महाराष्ट्र में बनाए हुए हैं. सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स. कुछ फोर्ट्स होते हैं हिल फोर्ट्स, यानी पहाड़ों के ऊपर बनाए हुए. कुछ होते हैं फॉरेस्ट फोर्ट,
यानी एकदम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट फोर्ट्स बने हुए हैं। सी फोर्ट्स होते हैं जो सी के जरिए, जो सी के थ्रू जो एनिमी हमारा देश में आने का कोशिश करते हैं, जो दुश्मन, उनको रोकने के लिए सी में, सागर में फोर्ट्स बने हुए हैं। और फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स, एकदम सादा प्लेनी रीजन में भी, प्लेनी रीजन मीन्स जैसा जो हमारा, हम जो एरिया में रहते हैं, मतलब ना पहाड़ है ना फॉरेस्ट है ना सी एरिया है, एकदम प्लेनी रीजन में भी कुछ फोर्ट्स होते हैं। मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड, मॉन्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है, कुछ अपने याद के लिए हम बनाकर छोड़ दिए हुए जो चीज़ होते हैं उसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जिस तरह ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है। तो मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधि, समाधि ये सब देखो मॉन्यूमेंट, आप अगर देखोगे तो किसी न किसी का जो टोम, टोम मीन्स जो डेथ होने के बाद जो उसका समाधि, उसका जो बॉडी रखे हुए चीज़, ज़्यादातर इवन ताजमहल भी इसी तरह ही है ना, वहाँ पर भी है जो टोम ऑफ मुमताज़ महल। सो मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधि, समाधि नाम का मॉन्यूमेंट होता है। ग्रेव्स, ग्रेव्स भी टोम ही है यानी कब्रिस्तान, दोनों ऑलमोस्ट सबका मीनिंग एक ही है। वीरगाला, वीरगाला एक्चुअली कुछ स्टोन कंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें नाम वगैरह टाइप टाइप नहीं, क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब करके खोद कर बनाया हुआ। और वो नॉर्मली जो बड़े बड़े वीर शूर जो व्यक्ति होती है देश के लिए या किसी के लिए मैटायर हो गया हुआ, मार्टायर मीन्स क्या होता है, शहीद हो गया हुआ लोगों का याद के लिए बनाया जाता है वीरगाला। एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड, और बिल्डिंग्स भी है वो भी मटेरियल सोर्सेस है, जैसा पैलेसेस हुआ, पैलेसेस हुए मीन्स क्या है, पैलेसेस महल लोगों का, कोई कोई बड़े बड़े राजा लोगों का जो पैलेस है। और मिनिस्टरियल मैंशंस, जो मिनिस्टर्स होते हैं किंग्स के, जो मंत्रियाँ होती हैं, तो मंत्री लोगों के लिए उनका बड़ा मैंशन, मैंशन मीन्स वो भी बड़ा बंगलो होता है अब पैलेस जैसे। क्वींस क्वार्टर्स यानी रानी वसा, वो पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोगों के जो पैलेस में उनके रानियों के लिए स्पेसिफिक जगह हुआ करता था। एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, इसके अलावा आम जनता का, कॉमन पीपल यानी नॉर्मल लोगों का भी घर हुए करते थे। ओके तो ये भी मॉन्यूमेंट्स हो गया, या ये सभी चीज़ें हमें क्या देते हैं, हिस्ट्री के बहुत सारे नॉलेज देते हैं। यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में एक वीरगला का एक इमेज दिया हुआ है, देखो कुछ लोगों का ये रूप वगैरह उसके वो पत्थरों पे खोद कर रखे हुए हैं, वो उनके याद के लिए। ओके दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड, ये सभी जो चीज़ें, जो मटेरियल सोर्सेस हमने जो एग्जांपल देखे हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड मीन्स देते हैं, इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड, इंसाइट मीन्स डीप नॉलेज अबाउट दैट पीरियड। Looking at them, we come to know about the development of architecture. ये सब देखकर हम समझ सकते हैं कि कितने डेवलप एक ज़माने में क्या थे और एक ज़माने में तक स्लोली स्लोली कितने डेवलपमेंट हो गए आर्किटेक्चर में। व्हाट डू मीन बाय आर्किटेक्चर? इट इज़ द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग, अदरवाइज कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अलग अलग स्टाइल के बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का जो डिज़ाइन बनाना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, दैट आर्ट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। तो ये सब चीज़ें देखकर हमें आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट के बारे में आइडिया मिल जाते हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन, वो ज़माने के इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति, यानी वो ज़माने में लोग कितने रिच थे या कितने पैसे कमाते थे, उनका पैसा कमाने का ज़रिया क्या था। द क्वालिटी ऑफ आर्ट, वो ज़माने के कला आर्ट कितने अच्छे थे या उसका क्वालिटी क्या था। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग बनाने का जो स्टाइल, एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहने का स्टाइल, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये भी पता चल जाता है। Since ancient times, coins like kaudi, damadi, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी वर यूज्ड, ये सब अलग अलग तरीके के कोइन है। इसमें से तो हमने सुना ही होगा पाई वगैरह, एक पाई नहीं मेरे पास, आना भी सुना होगा है ना, कौड़ी तो सुना है, फुटी फुट की कौड़ी नहीं मिलेगा, ऐसा सब जो प्रोवर्ब्स है या ऐसा कहावत है हमने सुने हैं। सो सिंस एंशिएंट टाइम्स कोइंस लाइक कवड़ी, दमड़ी
or ढेला, पाई, पैसा, आना, रुपी वर यूज्ड. सम लोकल इडियम्स और प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, कुछ लोकल कहावतें आर बेस्ड ऑन कोइंस, इन कोइन के ऊपर बेस्ड भी रहता है. फॉर एग्जाम्पल, एक फुट की कौड़ी देना ना. दैट मीन्स फुट की कौड़ी मीन्स द लोवेस्ट बिट ऑफ मनी, यानी एकदम छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ पैसे को फुट की कौड़ी कहते हैं. 16 आना सच, ऐसा भी कहावत है. इसका मतलब 16 से कोई रिलेटेड नहीं है, 100% सच, 100% ट्रू. The coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history. और कुछ लोगों ने, रूलर्स मेनली राजाओं ने, अपने टाइम पे जो ट्रांसैक्शन करने के लिए, चीज़ों का लेन देन वगैरह करने के लिए, लोगों को देने के लिए या वैल्यू को रखने के लिए, चीज़ों का कीमत डिसाइड करने के लिए कुछ कोइंस बनाए थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स के, जैसे कि गोल्ड कोइन, सिल्वर कोइन, कॉपर कोइन वगैरह. फ्रॉम दीज कोइंस वी लर्न अबाउट द रूलर्स. ये कोइन के जरिए हम वो राजा लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि वो कोइन के ऊपर कुछ ना कुछ छापा होगा, किसी न किसी के शेप्स होंगे, और देयर पीरियड, कौन से पीरियड के होंगे वो भी पता चलेगा. गवर्नेंस यानी वो ज़माने के राजा लोग या जो कोइन बने वो ज़माने के राजा लोग कैसे गवर्नेंस करते, गवर्नेंस मतलब रूलिंग कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करते थे. रिलीजियस आइडियाज़, वो ज़माने के लोगों का रिलीजियस आइडियाज़ यानी धर्म को लेकर क्या आइडिया थे उनका. पर्सनल डिटेल्स एक्सेट्रा, और उधर के एक एक लोगों का डिटेल, पर्सनल डिटेल्स वगैरह वगैरह भी ये कोइन के थ्रू हमें मिलते हैं. Similarly, we also learn about the financial transactions and economic condition prevailing at that time. ये मैंने ऑलरेडी बताया. फाइनेंशियल कंडीशन मीन्स पैसे के लेन देन वगैरह, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, और इकोनॉमिक कंडीशन. प्रिवेलिंग मीन्स वो ज़माने में जो कंटिन्यूड या चलते थे जो. वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटोलॉजी हैड एडवांस्ड इन दैट पीरियड. हमको लगता है पहले ऐसा नॉर्मली सोचोगे तो हमें लगेगा कि सब कुछ डेवलप, जो मेटल वगैरह सब कुछ का स्टडी अभी हुआ है. नो, काफ़ी साल पहले भी मेटल्स के वगैरह बहुत अच्छा नॉलेज होता था. व्हाट डू यू मीन बाय मेटोलॉजी? मेटोलॉजी मीन्स दैट स्टडी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ which we can make different shapes of metals, different things out of that. मेटल के बारे में जो कोई भी स्टडीज होते हैं उसको मेटोलॉजी कहते हैं. हैड एडवांस्ड इन दैट पीरियड यानी कितने हद तक मेटोलॉजी वो ज़माने में डेवलप थे. फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द coins of Emperor Akbar or Shiva Parvati on the coins of Hyder Ali, we see the religious coordination of those days. यकीन करेंगे नहीं, आज का ज़माने से काफ़ी अच्छे तरीके से पहले के ज़माने में रिलीजियस को, एक दूसरे रिलीजियस को रेस्पेक्ट करते थे. एम्बरर अकबर का ज़माने में जो कोइन थे, जो एम्बरर अकबर ने बनाए, उसमें राम और सीता का इमेज आपको देखने मिलेगा. दैट मीन्स एम्बरर अकबर एक मुस्लिम होते हुए हिंदुइज्म को कितना रिस्पेक्ट देते थे, उस पे से पता चलेगा. शिव पार्वती का इमेज, हैदर अली वो दूसरा एक मुस्लिम पर्सन है, एक रूलर है, उन्होंने बनाया हुआ कोइन से शिव पार्वती का इमेज दिखाई देते हैं. तो इससे पता चलेगा वो ज़माने के रूलर्स कितने रिलीजियसली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते थे, कोऑपरेट करते थे. द पेशवास यूज द अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स. पेशवा वो तो महाराष्ट्र के रूलर्स होते हैं, उन लोग यहाँ का लैंग्वेज को तो रेस्पेक्ट करते ही करते हैं, अपना लैंग्वेज को, साथ में फॉरेन लैंग्वेज जैसे अरबिक लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, उसको भी रेस्पेक्ट करते हैं. वो किससे पता चलता है? उन्होंने बनाए हुए जो कोइंस है, वो कोइंस के ऊपर ये लैंग्वेज से लिखे हुए हैं. दिस थ्रोस लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड. इससे पता चलता है कि वो पीरियड में क्या क्या लैंग्वेजेस यूज किया करते थे. यहाँ देखो कोइंस ऑफ पेशवा पीरियड, पेशवा ज़माने के जो कोइन है, देखो उसमें अरबी के कोई ऐसा पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपको दिखाई देंगे. यहाँ पर मेटल पे इस तरह डिज़ाइन किया है. और दूसरा नीचे देखो हैदर अली के ज़माने के coins. An inscription is a carving on a stone or a wall, etc. एक वॉल में, एक दीवार में या फिर पत्थरों पे कार्विंग करना यानी कुछ हार्ड सब्सटेंस से खोद कर अक्षर बनाना या शेप बनाना, दैट इज इंस्क्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द बृहदेश्वरा
टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावुर। तंजावुर के एक टेम्पल का नाम है बृहदीश्वरा। ये टेम्पल के प्रीमाइसेस में यानी आसपास में एरिया सराउंडिंग एरिया में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले या देखने को मिलेगा। मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड। जैसे राष्ट्रकूटा, चोला, यादव, ये सब अलग अलग डायनास्टी है ना, अलग अलग खानदान है जो राजा लोगों का, जो उनके पीढ़ी के बहुत सारे राजा लोग एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रूलिंग करते गए। एन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस तरह जो इंस्क्रिप्शन होता है, पत्थरों पे या वगैरह लिखा हुआ, खोद कर लिखा हुआ जो इंस्क्रिप्शन है, ये तो हिस्ट्री का सबसे रिलायबल, बहुत ही रिलायबल सोर्स मानता है, यानी सबसे भरोसेमंद, बहुत ही भरोसेमंद एक सोर्स मानता है। It helps us to understand features like the language, script, social life of a period. ये जो इंस्क्रिप्शन है हमें वो ज़माने के लैंग्वेज के बारे में, स्क्रिप्ट यानी रिटर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग लेटर्स, सोशल लाइफ, समाज के लाइफ स्टाइल, इसके सभी बारे में हमें नॉलेज मिलता है। इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। कॉपर के जो पतले शीट, तांबे के पतले शीट में कुछ इंस्क्रिप्शन किए हुए होते हैं, तो इन्हें कहते हैं कॉपर प्लेट्स। रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। रॉयल एडिक्ट, अभी राजा ने कुछ डिसीजन लिया है या कुछ न्यू लॉ क्रिएट किया है, या राजा ने अपना प्रजा को कुछ नया लॉ के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता है, वो होता है उनका रॉयल एडिक्ट। और दूसरा है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मीन्स जो जज, यहाँ पर तो जज का जगह में भी पुराना जगह में राजा ही होता था, तो राजा अपने दरबार में कुछ नया डिसीजन लिया, कुछ कानून के रिलेटेड नया कोई डिसीजन लिया, या किसी को कुछ सजा सुनाया, तो वैसा कुछ डिसीजन लिया है, तो दैट इज़ द वर्डिक्ट्स। तो ये सभी कॉपर प्लेट में, मतलब राजा ने डिसाइड कर लिया तो सील मारकर उसको एक क्या बोलते हैं, डिक्लेयर कर लेता है उसको, तो फिर उस दिन से वो लागू हो जाएगा। तो ये सभी किस में मार्किंग करते थे? कॉपर प्लेट में। ये कॉपर प्लेट में इंस्क्राइब करके रखते थे। चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, अगियारी, दरगाह, मकबरा, गुरुद्वारास, monuments, sculptures, wells, minarets, village boundaries and gates, weapons, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all material sources of history. तो मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री के पूरे एक लिस्ट में दिया हुआ है। चैत्यास, ये अलग अलग टाइप ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं। चैत्या, विहारास, टेम्पल आपको पता है, चर्च, मॉस्क मीन्स मस्जिद, अगियारी, ये भी दूसरा एक काइंड ऑफ लोगों का प्रार्थना प्लेस है। दरगाह, वो भी आप लोग जानते हैं। और मकबरा, बीबी का मकबरा करके एक मकबरा हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा, ये जो इतना भी है, चर्च, टेम्पल, उधर से लेकर एक गुरुद्वारा तक, क्या है वो? प्रेयर प्लेस होता है अलग अलग कैटेगरी के लोगों का। मॉन्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी देखा। स्कल्पचर बोलेगा तो शिल्प बनाना, यानी कि कोई रूप, अलग अलग रूप पत्थरों पे वगैरह, या फिर कभी बड़े रॉक्स में बनाते, नहीं तो मेटल से जरिए बनाते हैं। वेल, कुएं, मिनरेट्स, वो भी एक टाइप ऑफ बिल्डिंग है। विलेज बाउंड्री और गेट, वेपन, अलग अलग हथियारे, यूटेंसिल्स, बर्तने, ऑर्नामेंट्स, मतलब जो हम गहने, अलग अलग काइंड ऑफ बॉडी में पहनने वाले, क्लोथ्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, सुंदर अलग अलग डेकोरेशन किए हुए सामान, टॉयज, इम्प्लीमेंट्स यानी औजारे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर जो इमेज मैंने दिखाया ये चैत्यास का इमेज है, ये मिनरेट होता है। ओके, तो इसी तरह अलग अलग काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स है वो सब। तो ये सभी के बारे में जो स्टडी होता है, मतलब ये सभी सोर्सेज जो होता है उसको मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर
and the next is written sources that we'll study in the next video. Okay, hope you understood the video well. Waiting for your feedback. Thank you. Bye bye.